अस्सलामुअलैकुम। हम लोग आज के लेक्चर में डायरेक्ट रिएक्शंस को देखेंगे। हमने इससे पहले कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस को देखा, और कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो ऐसे रिएक्शन थे जिनमें के लो एनर्जी पार्टिकल आते हैं और दे फॉर अ मोमेंट दे बिकम पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस एंड शेयर द एनर्जी विद द न्यूक्लियॉन्स, एंड देन an outgoing particle emerge out. In direct reactions, are those reactions which take place without the formation of compound nucleus. In direct reactions, the incident particle interact primarily at the surface of the target nucleus. So we know this कि इसमें direct reactions में only the surface particles are involved. So यहाँ से incoming particle आएगा, वो सिर्फ इन से interact करेगा और चला जाएगा. Hence, these reactions are also termed as peripheral reactions, or the reaction happening on the surface. Direct reactions occur very rapidly, और इनका जो टाइम फ्रेम है वो है 10 to the power minus 22 सेकेंड. कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो 10 to the power minus 14 से 15 टाइम में होते हैं. एज़ कम्पेयर विद कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस, दिस आर लाइक डिफरेंस आपने पीछे -15 तक पढ़ा है, या -16 to -18 तक भी टाइम हो सकता है. The term direct reactions is used for variety of nuclear processes including inelastic nuclear scattering, जिसमें कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, स्ट्रिपिंग एंड इट्स इनवर्स, द पिकअप रिएक्शंस. ठीक है, स्ट्रिपिंग एंड पिकअप में आप ज़ाहिर स्ट्रिप आउट कर देंगे. हम आगे जाके देखते हैं एक न्यूक्लियॉन या एक न्यूक्लियॉन पिक करते हुए लेके जाएंगे इनकमिंग पार्टिकल. Direct reactions takes place through stripping mechanism and knockout mechanism. In former case, the reactions are termed as stripping reaction and the other one is knockout reaction. So stripping reaction में क्या होगा? For example, this deuteron comes in और ये पोटाशियम के साथ इंटरेक्ट करते हुए अपना एक जो न्यूक्लियॉन है वो पोटाशियम को ट्रांसफ़र कर देगा और ख़ुद जो है वो प्रोटॉन बन के बाहर निकल जाएगा. सो वन ऑफ द nucleon is stripped out from the projectile particle, or the deuteron may be considered as a loosely bound system of proton and neutron having very small energy. We have studied deuteron in nuclear physics 1. It's a like loosely bound system. It is therefore qualitatively understood that when a deuteron comes close to the target nucleus, either neutron or proton may be captured. So ये भी हो सकता है कि another reaction could be कि ड्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैप्चर हो जाए और न्यूट्रॉन जो है वो आउटगोइंग पार्टिकल हो. सो by the target nucleus under strong interaction, another particle continues on its path relatively undisturbed. Stripping is an instantaneous process that usually takes place at nuclear surface. Stripping reactions are used in probing nucleus, to disturb the nucleus और उसको ट्रिगर करने के लिए these have proved to be efficient tool in nuclear spectroscopy, जिसमें कि हम फिर न्यूक्लियस से चूँकि न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल अब्जॉर्ब हो जाएगा, इट विल गेट डिस्टर्ब, उसको अब वो वापस नॉर्मल स्टेट में आने के लिए कुछ एमिशन करेगा, and we can use that for nuclear spectroscopy to study the nuclear states. Knockout reactions, जिनको हम ब्रेकअप और फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, इनमें क्या होता है, इंसिडेंट ड्यूट्रॉन और इनकमिंग पार्टिकल क्या करता है, come in close contact with the target nucleus itself and the target nucleus, and it in this process collides with the proton which is knock out this reaction. So जो आपका ये नॉकआउट रिएक्शन है, इसके अंदर कि इनकमिंग पार्टिकल आता है और वो न्यूक्लियस के अंदर से एक अनदर न्यूक्लियॉन को फ्री करता है और ख़ुद भी उसके साथ चला जाता है. सो यानी एक न्यूक्लियॉन के साथ इंटरेक्ट किया और उसको वहाँ से फ्री कर दिया, सो नॉक्ड आउट वन ऑफ द न्यूक्लियॉन फ्रॉम द टारगेट न्यूक्लियस. सो फॉर एग्जांपल, अगर इसकी एग्जांपल यहाँ पर हम लिख दें तो वो होगी कि आपके पास प्रोटॉन आया और so proton comes in, interact with oxygen 16 and oxygen 15 बन गया, और साथ प्रोटॉन तो चला गया बट साथ में एक यहाँ से न्यूट्रॉन को भी ले लिया. सो नॉकआउट रिएक्शन में इनकमिंग पार्टिकल goes out with another nucleon from the target nucleus. पिकअप रिएक्शंस में क्या होता है,
द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ स्ट्रिपिंग रिएक्शन इज़ अ पिकअप रिएक्शन। सो उसका उल्टा है कि उसमें स्ट्रिपिंग रिएक्शन में क्या हो रहा था कि वन ऑफ द न्यूक्लियन फ्रॉम द इनकमिंग प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज़ बीइंग नॉक्ड आउट या टेकन ऑफ या स्ट्रिप्ड। यहाँ पे क्या है कि इनकमिंग पार्टिकल जो है इट टेक्स वन ऑफ द न्यूक्लियन फ्रॉम द टारगेट न्यूक्लियस। सो हीलियम-3 कम्स इन एंड यहाँ से ये क्या पिक कर रहा है वन ऑफ द वन न्यूट्रॉन और goes out as helium-4. This state in the residual nucleus strongly excited by pickup reactions, and the one whole state, that is those formed by removing one of the particle in leaving the remaining 39 nucleon unchanged in their relative motion. So basically ये आपके पास दैट पिकअप रिएक्शन जो है वो एक उसकी आप कह लें कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी एक आउटर न्यूक्लियन की स्टेट को के साथ उसकी एनर्जी मैच करती है और उसको एक्साइट करती है, और वहाँ से हमारे पास जो है वो ये एक पिकअप रिएक्शन होता है. सो अनदर सच रिएक्शन इज़ इन न्यूट्रॉन कमिंग, और ये तो बेसिकली एक इंड्यूस्ड फिशन, नॉट फिशन रिएक्शन इनफैक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों जो पार्टिकल्स बन रहे हैं दे आर नॉट इक्वली रिलेटिवली इक्वल मास. सो न्यूट्रॉन कम्स इन टू यूरेनियम और थोरियम बनता है और हीलियम जो है वो बाहर निकलता है. सो इम्पोर्टेंस क्या है इनकी पिकअप और स्ट्रिपिंग रिएक्शंस की. इन 1952 बेथे एंड ब्लू pointed out that stripping reactions in some cases could be used to measure the purity of shell model states, that the nucleus is has this particular shell model state. So उसको verify करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. In stripping reaction, the captured nucleon, say the neutron, occupies one of the available quantum states in the target nucleus, and other यानी कि पिकअप में say the proton carries some information concerning this state. Conversely, so ये कि आपके पास जो भी पार्टिकल कैप्चर होगा इन द न्यूक्लियस और स्ट्रिप आउट होगा उससे या पिकअप होगा, दोनों जो है वो किस पार्टिकल किस स्टेट के अंदर अब्जॉर्ब होंगे. वी कैन स्टडी दैट स्टेट बाय स्टडिंग दी वो यानी आउटगोइंग पार्टिकल्स और इनकमिंग आउटगोइंग पार्टिकल्स की स्पिन और उनके एंगुलर मोमेंटम, उनको स्टडी कर सकते हैं, और उससे उनकी एनर्जी को तो हम उससे ये पता कर सकते हैं कि जी जिस स्टेट में एब्जॉर्ब हुआ है, ये जिस स्टेट से बाहर निकला ये पार्टिकल, उनकी वो शेल मॉडल की कौन सी स्टेट है. तो बेसिकली शेल मॉडल को वेरीफाई करने के लिए यूज़ होता है. ट्रांसफ़र न्यूक्लियर रिएक्शंस भी डायरेक्ट रिएक्शंस हैं जिनमें कि जैसे ये दो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई के बीच में ये रिएक्शन हो रहा है, और उसमें जस्ट एक न्यूक्लियस से जो न्यूट्रॉन है वो दूसरे न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र हो जाता है. चेंज एक्सचेंज न्यूक्लियर रिएक्शन, चार्ज एक्सचेंज न्यूक्लियर रिएक्शन. इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एटॉमिक नंबर Z changes but mass number A is constant. For example, pion exchange reaction. So pion exchange जो है वो आप में भी मैं आपको अगर इसकी एग्जांपल दूं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो आपस में अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं बाय ट्रांसफरिंग पायोन. ठीक है, पायोन 3 तरह के होते हैं, प्लस, नेगेटिव और ज़ीरो चार्ज के. तो इन से प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं. प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन सकता है. सो फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बनाना है तो यू नीड प्रोटॉन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, पाई नेगेटिव आपको यूज़ करना पड़ेगा. सो पाई नेगेटिव और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रल चार्ज बना देंगे तो न्यूट्रॉन बन जाएगा. सो दोज पार्टिकल दोज रिएक्शंस आर आल्सो डायरेक्ट रिएक्शंस. सो अब अगर हम डायरेक्ट और न्यूक्लियर रिएक्शंस की कुछ मेन यानी डिफरेंसेस देखें, अगर हमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो क्या होंगे, अगर हम उनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं. सो ये मैंने ChatGPT से आपके लिए लिखवा दिया है. क्या है कि जी बेसिक प्रोसेस में प्रोजेक्टाइल इंटरैक्ट विद वन और फ्यू न्यूक्लियन, जबकि कंपाउंड में ये फुली एब्जॉर्ब हो जाता है और सारे न्यूक्लियन से इंटरैक्ट करता है. इंटरमीडिएट स्टेट में कि इसकी कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होती डायरेक्ट रिएक्शन,
ठीक है, जबकि कंपाउंड न्यूक्लियर स्टेट जो है वो फॉर्म होते हैं। और हम रिएक्शन को लिखते भी ऐसे हैं कि पहले वो जो डायरेक्ट रिएक्शन है उसके बीच में हम एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनाते हैं विद एक्साइटेड स्टार उसके ऊपर बनाते हैं। सो इंटरमीडिएट स्टेट है इन रिएक्शंस के, जबकि इनमें नहीं है। टाइम स्केल क्या है इसका? वेरी शॉर्ट है, 10⁻²2, इसका -16 तक होता है। एनर्जी शेयरिंग क्या है? लिमिटेड है विद फ्यू पार्टिकल्स, जबकि ये जो है वो ज़्यादा पार्टिकल के साथ एनर्जी शेयर होगी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में क्या? अच्छा, ये चीज़ हमने नहीं देखी कि अगर हम वेट अ सेकेंड। सो लेट्स से आपके पास आपको पता है कि जो भी इनकमिंग पार्टिकल है उसकी उसके साथ एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड है। सो लेट्स से इनकमिंग पार्टिकल इज़, और ये भी पता है कि दिस डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। सो ग्रेटर द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, दैट इज़ द मोर फास्टर इट इज़ मूविंग, द शॉर्टर इज़ द वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब है कि अब आपका पार्टिकल जो है, सो लेट्स से ये आपके पास न्यूक्लियस है। सो अगर आपका पार्टिकल जो है वो स्लो मूव कर रहा है, जैसे हमने पढ़ा भी था कि जो लो एनर्जी के पार्टिकल हैं वो न्यूक्लियस के साथ कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं। सो अगर वो स्लो मूव कर रहा है, सो इट विल हैव अ लॉन्गर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लॉन्गर होगी तो क्या होगा कि वो उसकी वेवलेंथ न्यूक्लियस के साइज से मैच कर रही होगी। सो द चांसेस, यानी हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि ये फिर क्या करेगा, अगर इसकी वेवलेंथ जो है वो न्यूक्लियस से मैच कर रही होगी, लॉन्गर वेवलेंथ मीन्स लो एनर्जी। सो अगर ये न्यूक्लियस के साइज से मैच करी तो न्यूक्लियस के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा और ये रिएक्शन प्रोसीड होगा एज अ कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन। सही है, सारे न्यूक्लियॉन के साथ अपनी एनर्जी शेयर करेगा, इसके अंदर अब्जॉर्ब होगा, इंटरमीडिएट स्टेट होगी, 10⁻16 सेकंड के बाद फिर ये मर्ज आउट होगा। सो यानी अगर आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ होगी, सो द एनर्जी विल बी शेयर इन द न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब हो जाएगा, एनर्जी विल बी शेयर विद अदर न्यूक्लियॉन्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि साइज ऑफ द wavelength is matching the size of the nucleus. However, if the particle is coming with high energy, high momentum, so the wavelength is shorter. इस wavelength में आपके पूरे न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। सो दिस विल कम इन इंटरैक्ट विद फ्यू न्यूक्लियॉन्स, या अगर इतनी छोटी है कि दो न्यूक्लियंस के बीच में जो साइज डिफरेंस है उसके बराबर है, तो ये जस्ट चंद 1 2 3 न्यूक्लियॉन्स से इंटरैक्ट करेगा और चला जाएगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इनकमिंग पार्टिकल। इफ़ इट इज़ शॉर्टर, हाई एनर्जी, इट विल इंटरैक्ट विद न्यूक्लियॉन, क्योंकि न्यूक्लियॉन के साइज़ की वेवलेंथ होगी या न्यूक्लियॉन के बीच में जो डिस्टेंस है उसके साइज़ की वेवलेंथ होगी। बट इफ़ द पार्टिकल इज़ लो एनर्जी, हैज़ अ लॉन्गर वेवलेंथ, then the wavelength matches with the size of the nucleus and you have a compound nuclear reaction. So this is direct and this is compound. What is another difference? Interaction region. सो ये हमने देखा कि जी ये जो है वो सरफेस पे रिएक्शन होते हैं डायरेक्ट, और ये होल न्यूक्लियस के साथ होते हैं। टाइप ऑफ इंटरेक्शन क्या है? सिंगल स्टेप होगा, ये मल्टीपल स्टेप है, और स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी एनर्जी की। एनर्जी जो है वो बिटवीन द न्यूक्लियॉन शेयर होगी। एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? स्ट्रांगली फॉरवर्डेड पीक। अच्छा, डायरेक्ट रिएक्शन जो हैं हमें क्रेन की बुक पे अगर आप देखें तो हमें वो एक एग्जांपल के साथ भी, ड्यूट्रॉन के साथ एग्जांपल लेके भी वो समझाता है कि कैसे जो डायरेक्ट रिएक्शंस हैं देयर एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट आइसोट्रॉपिक, जैसे कंपाउंड में होता है। सो कंपाउंड हमने देखा था कि जो इनकमिंग पार्टिकल है वो चूँकि एब्जॉर्ब हो गया और न्यूक्लियस फॉरगेट अबाउट हाउ इट वाज फॉर्म्ड। सो अब आपके पास जो आउटगोइंग पार्टिकल होगा वो किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है, इट्स आइसोट्रॉपिक। जबकि जो आपका डायरेक्ट रिएक्शन है, चूँकि ये रिएक्शन सरफेस के ऊपर हो रहा है, सरफेस न्यूक्लियॉन के साथ, तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल आ रहा है, जिन न्यूक्लियॉन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है वो वहीं से बाहर निकलेगा, या वो चूँकि होल न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा, सो इट विल बी शार्पली स्ट्रांगली फॉरवर्ड पीक, यानी जिस डायरेक्शन में आपने उसने उसको हिट किया है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो उसी डायरेक्शन में, यानी आपके पास वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी एंगुलर मोमेंटम की। देन है आपके पास एनर्जी स्पेक्ट्रम। सो इसका जो है वो शार्प डिस्क्रीट, अगर आप एनर्जीज देखें तो इनकी शार्प और डिस्क्रीट एनर्जीज होंगी, जबकि जो आपका कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन है इसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी आपके पास पीक्स नहीं होंगी बल्कि एक पूरा, यानी जैसे आप कह लो कि आपने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हुई है ना, जैसे गैस की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यू हैव कंटिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल कैन एमिट आउट विद डिफरेंट एनर्जीज। जैसे आइसोट्रॉपिक, जैसे डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है, इसी तरह किसी भी
दिस इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी जिसके साथ ये निकल सकता है. सो दैट. और इसकी फिर एग्जांपल है नॉकआउट, स्ट्रिपिंग और पिकअप रिएक्शन जो हमने भी पढ़े. और फिर इसकी एग्जांपल है न्यूट्रॉन कैप्चर और एवेपोरेशन. सो ये कुछ 6-7 जो डिफरेंसेस हैं ये आपने कर लेने हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन.